अब विजिबल होगा, Yes, sir. राइट? तो इनिशियली आई एम जस्ट ओपनिंग प्रीमियर प्रो, राइट? See this. Initially level, I'll just create a new project only and save it in my desktop, and the file name is like class only. First of all, today I'll just have to understood the sequence setting. Past classes I'll just create a sequence directly, right click, new item sequence and directly enter, right? Right. Now today I have to understand what is a sequence and why we are just going to just create the sequence and why it is important to create the sequence, right? So first of all, I'll just tell you the sequence is a creating a video lineup to present and to create a concept and idea, right? So there is a lot of multiple options are there, so these are the all options, these are the all broadcast basic. I'll just write down few words for you. Mainly we have three broadcast: PAL, NTSC and CCAM, right? Three broadcasts are there. I'll just open one image also in Google. Did you visible this image? Yes, sir. I'll just write down and I just open this image and you can see this. I'll just there is a broadcasts are there which we are using in whole the world. In NTSC you can see this. These kind of countries we are they are using for NTSC. These kind of countries we are using the NTSC cam, and these kind of countries we are using the PAL. Now we are in India, so we are using the PAL and CCAM also, right? So in India both of the broadcasting we are using. So now we are using PAL, and there you can say this, there is a 2, 3 and 4 broadcasting standards are there in a PAL only. So first of all we have to understand. So if you are going to just select the standard one, 725, 76 and 25 frames, so a lot of settings are there. First of all we have to go the manual settings. We just analyze it. These are the four standards, and this is standard name already mentioned, and this is the frame rate over there. So PAL frame rate is 25 and the NTSC frame rate is 2030 and the CKM is the 24. Is the actual frame rate also is a different, is a 29.97 and the 23.97, right? Is it understood? It is a totally frame rate. It's a frame rate. What is a frame rate? I'll just explain you the what is a frame rate. And is a frame per second, right? It's a frame per second. It means like how many numbers, how many frames are there in a second. Cool. Yes. Now we are moving to the directly to the software, and this is a basic settings. These are default settings. We are not working. I am not working on a default setting. I am just creating our own settings over there. So first of all, we just select anything and anyone and go to the directly the settings panels and create our own settings. Right. So this is the whole settings panel are there. First of all, we have to analyze. We have to understand our own settings. So this is the editing mode, and I have to select the custom settings. These are the same settings are there which we are there and same thing are there. So initially level I am just selecting a custom settings, and these are the custom settings are there. First of all, if you are using a custom settings, the automatically setting is automatically logged, it will be highlighted and you have to just select it as per your according. So I am just selecting a setting as per my according. So this is the first one: how many frames in a setting what do you want.
Initially I want a 25 seconds in a second, 25 frames in a second. So I'll just select it at 25 frames in a second. If you want to change the frames like 30, 40, 50, whatever you want. So if you just selected a higher version 60, so automatically in a 1 second is a 60 frames over there. So automatically in a video is a going for a smoothness purpose, smooth video are there, right? So first of all, we you have to understand with whatever which frame rate do you require. As per the like guidelines, as per the broadcast, you have to select the 24, 25 or 30 only one, and 50 and 60 it's a like if you are working on a good quality, that time you have to select the 60 and 60 above 60, right? So now initially level I'm just using the 25 frames in a second. This is a in a second, how many frames are there? 25, right? It is Mm-hmm. understood. Any doubts over there? No. That's good. Now I'm moving to the next one. The video panel is a video panel over there. To frame size, it is a frame size. Just a second, I have a call right now. हेलो. क्या करना मतलब? हाँ तो आओ सर्च करिए. ठीक है, आप एक बार धीरे से बात करिए. कल को कॉल पे बात करिए. मैं भी रहूँ. So now I selected a 25 frames. Now I'm sure I will moving on a video part. So there is a like first frame is a video and frame size. What is a frame size? I just write down a few frame sizes. The normal frame size 180 and 119 to 1080. What is that? First of all, we have to understand what is that. Initially, I am opening a paint section, and we have to analyze and we have to understand what is 1920 and 1080. I'll just 1920 1080. Same thing I just round, like horizontally like 1920, vertically 180 1080, right? It is it understood? Now we have to Yes. how to calculate 1920 and 1080, right? So first of all, there is a pixel memory are there. So first of all, 1920 lines like this and 1080 lines like this. So automatically will create a one pixel. See this, automatically create a pixel. It is a pixel. So that kind of thing will create a frame size, right? It is understood. Yes. How many pixels are there? That is. That is one. Okay. You can just That is calculate one it, thing. 1920 into 1080. So it lists like 20 lakh 73,600 pixels are there in a single image. Okay. Okay, and if you want to just calculate and everything, so there is a like I'll just share the resolution board also. Just a second, I'll just provide you. Same thing I'll provide you, so you can just go through it. See this. This is a resolution. Total resolutions are there, which we are starting from. The resolution is 16 by 16. Is a smaller mobile, microvision. Now we are using 9021 You can see this 20 lakh 73,600. You can see this. The same value are there, right? So it Okay. is clear how to calculate and what is the scenario of the frame size and everything. Yes. That's good. Now it is a pixel aspect ratio. What pixel aspect ratio which we are using? So it is a like 1.029. So now we have to explain. I have to explain like what how many the pixel is, what aspect ratio we are using, like this or like this or whatever. So this how I'll just explain you one each one or two each one or one each two. This is a aspect ratio. I'll just giving the example only and not for the proper way. So this is a aspect ratio. One each one is a square pixel, two each one is an anamorphic, and one each two is a normal. And if you go for another one, so you have to just select it the another pixel aspect ratio. So
this option is asking to me which pixel aspect ratio do you want. If you're using this, so Oh, all the pixel is converted into this shape. If you're using this, you're using all the pixels converted into this shape. So it is very important to which pixel are you using. So it is very important. Hello. okay. हेलो. अभी 11 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक, 10:30 तक. राइट. नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि कौन से मिनट में आप जाओगे. हाँ हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बताओगे. मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ वेट की क्लास के बाद. मैं यार एक मैं पॉज करती हूँ. जी भैया. मैं ये नहीं बोल रहा उसको, मैंने उसको बोला था फ्रीलांसिंग के लिए. मैंने उसने बोला फ्रीलांसर करना है. मैंने कहा रुक जाओ, फ्रीलांसर करने के लिए परसों जाना है. इनिशियल भैया हैंड टू हैंड बुक कर रहे हैं भैया, ऑप्शन ही नहीं है, सर्च आउट करना पड़ता है. क्लाइंट दीक्षित है, 2 क्लाइंट है हमारे, दीक्षित और वो. कौन? दीक्षित का है, अभिषेक का है, और एक और नहीं. और Hello. जस्ट अ सेकंड, आई हैव अ कॉल, गिव मी 2 minutes. राइट. मैं आपको बता रहा था पिक्सल एस्पेक्ट रेशो की, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो पे कैसे काम करते हैं. तो मैंने आपको बताया अभी कि जैसे हमारे हर टाइप के पिक्सल्स होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है. राइट. तो ये हमारे पिक्सल्स हैं. उन पिक्सल्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग लाइक स्क्वायर पिक्सल्स. राइट. हमेशा मैं स्क्वायर पिक्सल्स को लूंगा. पिक्सल जो मेरे दिखने चाहिए स्क्वायर शेप में दिखने चाहिए. अदरवाइज मेरे और भी पिक्सल्स मोड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेंटिंग स्क्रीन में. नहीं आ रहा सर. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन. हाँ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो पिक्सल्स को लेते हैं स्क्वायर शेप में लेते हैं. हमारे पिक्सल जो है स्क्वायर फॉर्म में होने चाहिए. सर आपने रिकॉर्डिंग कर लिया ना? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने. राइट. तो जो स्क्वायर शेप में हमारे पिक्सल रहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम करते हैं. तो अगर आपको चेंज करना है पिक्सल्स को तो आप यू कैन चेंज. मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स को. अगर आपको लाइक हॉलीवुड मूवीज या किसी और मूवीज में काम करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एनामॉर्फिक या समथिंग एल्स. ठीक है. ये हमारे फील्ड्स होते हैं, किस फील्ड में हम लोगों को काम करना होता है. हमारे मूवीज में 3 टाइप के फील्ड्स होते हैं, लोअर, अपर एंड नो फील्ड. तो ये क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मैं गूगल पे जाता हूँ, एक इमेज खोलता हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ लोअर फील्ड. ये दिख रहा है आपको वाइब्रेशन वीडियोस के अंदर, ये वाइब्रेशन आ रही है, इट्स अ लोअर फील्ड. जो लाइंस जब ऐसे ऐसे आने लगती हैं इट्स अ अपर फील्ड. जब ये लाइंस क्रॉस हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्कैन. ठीक है. सो वी ऑलवेज यूज प्रोग्रेसिव स्कैन, इट मीन्स नो फील्ड. ठीक है. सो ऑलवेज मैं इसको यूज करूंगा प्रोग्रेसिव स्कैन को. नो फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा. नेक्स्ट मेरा होता है यहाँ पे ऑडियो सैंपल्स की, किस ऑडियो सैंपल में मैं काम करूंगा. तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो सैंपल्स होते हैं. ठीक है. सो जो हमारा डिफॉल्ट होता है 48,000 होता है. आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हो, आपको कुछ और रखना है आप रख सकते हो. ये डिपेंड करता है आपके ऑडियो के फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से. अगर आपको डाउनग्रेड रखनी है आप डाउनग्रेड रख सकते हो, अपग्रेड रखनी है आप अपग्रेड रख सकते हो. अगेन ऑडियो मिली सेकेंड्स, किस फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग आप काम करते हो. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, जैसे
कि हमारा आवर्स, मिनट, सेकंड एंड मिली सेकेंड्स पे काम होता है, लेकिन हम यहाँ वीडियोस के अंदर फ्रेम्स पे काम करते हैं और ऑडियो के अंदर मिली सेकेंड्स पे काम करते हैं। बट इफ दिस इज अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर हम ऑडियो सैंपल पे हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड एंड फ्रेम पे हमारा काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा होता है वीडियो फाइल्स, वीडियो प्रीव्यूज, कि हमें जो फाइल्स हैं या जो भी हम इंपोर्ट कराएंगे डेटा, वीडियो या ऑडियो या फिर एनीथिंग, वो जो डेटा है वो किस वे में हमें रिप्रेजेंट होगा, राइट वो किस वे में मेरे को रिप्रेजेंट होगा। इट मीन्स जैसे मैं कुछ भी देखता हूँ हाई क्वालिटी डाटा होता है, क्या होता है, हाई क्वालिटी डाटा होता है। तो उस डाटा के अंदर आपने देखा होगा कि वो डाटा हम समटाइम हमारा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उतनी नहीं होती है, तो हमें उसको स्लो करना पड़ता है या सिस्टम हमारा स्लो चलने लगता है। तो अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपना डाटा को रन कराना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हो। मीन्स आपका वीडियो जो है वो प्रीव्यू के टाइम पे स्लो चलेगा, मत मीन्स क्वालिटी उसका लॉस हो जाएगा, बट एक्सपोर्ट के टाइम पे उसकी क्वालिटी फुल रहेगी। ठीक है, सो आप यहाँ से उसकी वीडियो की क्वालिटी डाउन कर सकते हो। सो मैं यहाँ से AVI कर देता हूँ, सी दिस, इसका रेजोल्यूशन डाउन हो गया। इट मीन इट इज ओनली फॉर प्रीव्यू। ठीक है, कि आपका वीडियो प्रीव्यू के टाइम पे आपकी क्वालिटी क्या रहेगी। क्लियर? मैक्सिमम बिट रेट, मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, आपके सिस्टम की क्वालिटी अच्छी है तो आप इसको बढ़ा के रख सकते हो, नहीं अच्छी तो आप इसको डिक्रीज करके रख सकते हो। राइट, ये सीक्वेंस पैनल है, आपको सीक्वेंस का नाम क्या रखना है हम यहाँ से चेंज कर सकते हो। राइट, सो दो ट्रैक्स और हमारे यहाँ, दो ऑप्शंस और हैं, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इनिशियल लेवल पर हम अपना सेटिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं और सेटिंग्स को ओके कर रहे हैं। राइट, मैंने इसको ओके किया, ऑटोमेटिकली मेरा सीक्वेंस यहाँ क्रिएट हो गया, सी दिस। ठीक है, सो अभी मेरे को क्या करना है, जो मेरा टास्क रहेगा वो टास्क क्या रहेगा, हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन ऑप्शन पढ़ा था और एक कट टूल पढ़ा था, राइट। राइट। इन दोनों टूल्स की हेल्प से मैं आज आपको एक टूल और एडिशनल बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम इसमें काम कर सकते हैं और चीज़ों को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो मैं अभी इनिशियल लेवल पे 2 फुटेज को इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, ये रैंडम फुटेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ फुटेज को इंपोर्ट कराया। डबल क्लिक करके हमारा सोर्स पैनल में जाता है, ये बताया था मैंने आपको। यस। आउट करके हम कट लगा सकते हैं, ये मालूम है आपको। यस, आई और ओ से। करेक्ट, तो आई और लगा के यहाँ पे हमारा ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट आता है। ठीक है, अगर मेरे को आई और लगाया है तो मैं वीडियो ला सकता हूँ और यहाँ से ऑडियो ला सकता हूँ। दोनों लेके आने हैं, स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करो, ड्रैग कर दो, दोनों आ जाएंगे। सो ऐसे आप ऑडियो वीडियो दोनों इंपोर्ट करा सकते हो, राइट। राइट। सो यहाँ वो ये पूछ रहा है आपकी जो क्लिप है, दिस सेटिंग इज नॉट मैच्ड, मतलब जो क्लिप की सेटिंग है वो डिफरेंट है और जो मेरी सीक्वेंस की सेटिंग है वो डिफरेंट है। सो आप चाहते हो कि इसको चेंज करना और आप चाहते हो उसको सेम रखना है। You want to just existing settings or you want to just change the settings as per your recording. You have to change the settings as per your recording and also the according to the previous settings which we are using already created own settings in the settings panel, right. So initially you have to keep the settings or change the settings. Initially I just go for the initially keep the settings. So keep the settings like which we are like own settings already there, and also the this settings will not change as per the according this, it is not changed. सो आप अपने अकॉर्डिंग इस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, ये आपके बिल्कुल हाथ में होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। चेंज करना चेंज कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, वो आपकी चॉइस है। सो इनिशियली लेवल पे क्योंकि बिकॉज समटाइम्स क्लाइंट गिविंग सम सेटिंग्स एंड वी आर वर्किंग ऑन सेम सेटिंग्स, तो दैट टाइम आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप कौन सी सेटिंग्स पे वर्क कर रहे हो, राइट। तो ये मेरे पास सारी सेटिंग्स हैं, मेरे पास ऑडियो है। अब इस ऑडियो में मेरे को क्या करना है, मैं आज एक टूल्स को और नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और उस प्रोजेक्ट पे समझता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसमें क्या होता है, अभी समटाइम्स क्या होता है, मैं कहता हूँ मेरे को यहाँ पे एक क्लिप को ऐड करना है, यहाँ पे एक क्लिप को ऐड करना है।
तो उस क्लिप को ऐड कैसे करते हैं, ये सारी मेरे को क्लिप को मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। इट मीन्स कि लाइक समटाइम्स मेरा कोई फुटेज छूट भी सकता है, सेलेक्ट करने में मेरा इशू आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, इसका हम यूज करेंगे। मैं जूम करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा उसके आगे जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिक सारा सेलेक्ट हो जाएगा सीधे से। उसके बाद मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, आप जस्ट सारा डेटा सेलेक्ट करके मूव कर दोगे आगे, और यू कैन जस्ट पुट द एडिशनल वीडियो जो आपने सेलेक्ट की हुई है। तो ऐसे हम क्लिप को ऐड कर सकते हैं बीच में कहीं पे भी, राइट। इसमें कोई डाउट? राइट। सो अगर मैं कहता हूं मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को खाली ऊपर वाला ट्रैक मूव करना है, तो शिफ्ट को होल्ड प्रेस कीजिए और क्लिक एंड मूव। इससे क्या होगा, मेरा ऊपर वाला सिलेक्ट होगा एंड आप देख सकते हो इसमें मेरा खाली ऊपर वाला सिलेक्ट है, पूरी लेयर ऊपर ही सिलेक्ट है। शिफ्ट के साथ नीचे वाली पर क्लिक करोगे सारी नीचे ही सिलेक्ट होगी, जिस भी लेयर पे क्लिक करोगे उसके आगे जितना भी डेटा होगा सिलेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज मैं कहता हूँ मुझे ये पीछे वाला सीक्वेंस डिलीट करना है या फिर इसको मूव करना है या यहाँ से हटाना है। सो उसके लिए सेलेक्टेड, यहाँ पे एक टूल और है सेलेक्ट बैक फॉरवर्ड टूल, बैकवर्ड टूल, तो सेलेक्ट दिस वन, यू कैन सी दिस, पीछे वाला जितना भी डेटा होगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ऑटोमेटिक लाइक आप ऐसे सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। तो ऐसे सारी चीजों को सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मेरे को सेम पीछे वाले में खाली एक लेयर सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए, सिंगल लेयर सेलेक्ट होगी। तो ऐसे ही हम कोई भी लेयर को कभी भी कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? इसमें लेयर कौन सा हुआ? ये देखिए लेयर मींस इट मींस ट्रैक। अब मेरा मतलब लेयर से यहाँ ट्रैक था क्योंकि मैं ग्राफिक भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ और वो ऑलवेज टाइम में यूजिंग लेयर पैनल, तो वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर जब भी हम काम करते हैं इट्स अ ट्रैक। तो ये ट्रैक होते हैं, ये ट्रैक बने हुए 1 2 3 1 2 3, राइट। ठीक है। सो ये सारे लेयर्स हैं, सारे ट्रैक मैं इजीली कर सकता हूँ। फ्रंट करना है तो फ्रंट कर सकता हूँ, बैक करना है तो शिफ्ट के साथ पीछे जाके इसको बैक कर सकता हूँ। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये शिफ्ट के साथ में कौन सा की प्रेस कर रहे हैं सर? शिफ्ट के साथ ए प्रेस किया मैंने, शॉर्टकट कमांड से आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो सीधे से, मैं कमांड लिखी हुई है ए और शिफ्ट ए सीधे से। ओके, सो ये क्लियर है आपको फंडा? ये सर, बट ये प्रैक्टिस से ही आएगा, मतलब ऑब्वियसली इट इज ऑन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। सो आज के लिए मेरा जो प्रैक्टिस के लिए आपको टास्क होगा सेम आपको एज इट, ये जैसे दिख रहा है आपको एज इट इज एक कॉन्सेप्ट रेडी करना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन काम का जो वर्किंग स्टाइल रहेगा वो सेम रहेगा। वर्किंग स्टाइल जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। सो सीधे मैं यहाँ पे जाऊंगा, आपको एक नया टास्क दूंगा आज के लिए, मतलब जो कल के लिए होमवर्क रहेगा हमारा, एक टास्क रहेगा। मैं ये एक टास्क आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस टास्क में आपको गो थ्रू करना है कि हम क्या करना है, सारी वीडियोस को देखना है और देखने के बाद एनालाइज करना है कि हम इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक टास्क प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे विजिबल हो जाएगा। राइट, मैंने आपको ये वीडियो लिंक शेयर किया है, इस लिंक को डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर रॉ फुटेज है, इसको आपको डाउनलोड करना है और इसको एडिट करके लाना है, राइट। ठीक है सर, हो जाएगा। एक बार वीडियो उसको देख लो प्रॉपर ओपन हो रही है नहीं हो रही है, तो आफ्टर दैट फिर